Very good morning, students. Welcomes again in our online classes. You learn many things in our this chapter, chapter number 18, and the name of this chapter is water pollution and air pollution. In this chapter, we learned about the air pollution. What do we mean by pollution? What do we understand by the air pollution? What are air pollutants? Greenhouse effect, greenhouse gases, global warming, etc. We learned many things in that part. Okay. Now today we are going to start the next topic of this chapter, and it is water pollution. What is water pollution? The imbalance in the proper ratio of water is known as water pollution. Okay. In class 7th, you learned that water is a precious resource. Precious, very important. बहुत कीमती resource है water. Why? Because we can't live without water. You know very well. Think and list the various activities in which we need water. Think and answer me the various activities. Number 1, the most important activity that we drink water to live, and we use water in many household works, and many industries are dependent on the water. We also prepare or generate energy from hydro plants, uh, hydropower plants. Okay. So think and list the various activities in which we need water. We saw that water is becoming scarce due to increasing in population. We saw, हमने देखा अभी तक that water is becoming scarce. Scarce means insufficient for the demand. कमी है water की. किस वजह से? To increase in population. Population में increment हो रहा है, तो water की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है. वाटर इनसफिशिएंट है लोगों के लिए, सो वाटर इज़ बिकमिंग स्कर्स. इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन में भी कमी आ रही है, वो यूज़ में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में यूज़ में लिया जा रहा है, तो उसकी लगातार वो कमी हो रही है और वो इनसफिशिएंट है फॉर द डिमांड. जितनी डिमांड है इतना वो प्रोवाइड हो नहीं पा रहा है. You have also studied how water becomes dirty after we use it. आपने ये भी पढ़ा था अपने 7th स्टैंडर्ड में. We use it. How water become dirty. पानी कैसे डर्टी हो जाता है आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद, बाथिंग एट्सेट्रा. We wash our clothes in the river or pond water, then full water is dirty. Okay. Same as we use soap etc. for bathing, and this make dirty water. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality. Spoils, बिगाड़ देती है, खराब कर देती है its quality. Whose quality? Water's quality. And change its smell and color. First, it spoil its quality, number 1. Number 2, change its smell, and number 3, change also its color. How? By the adding some materials to the water like soap, chemicals, all things which are harmful to us. When these materials added in the water, water becomes spoil and चेंज इट्स स्मेल एंड चेंज इट्स कलर. कई बार आप कहते हैं जैसे जो ड्रेन वाटर होता है, नाली का पानी होता है, उसमें से स्मेल ऑर्डर, बैड ऑर्डर आती है, गंदी स्मेल आती है. सेम लाइक कलर, आप ड्रेन वाटर को देखते हैं, एक आप प्योर वाटर को, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको देखेंगे तो दोनों के कलर में डिफरेंट आपको पता चल जाएगा. वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट मीन्स सेडिमेंट जो पूरा प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता वाटर में. जैसे आप सैंड को वाटर में मिक्स करेंगे तो वाटर के नीचे सेडिमेंट के थ्रू वो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगी, वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी. तो इस टाइप को हम बोलते हैं सिल्ट. सीवेज, गंदा पानी, गंदे
जो सीवेज सिस्टम है हमारा, वो पानी हम रिवर्स में खोल देते हैं और फिर वो पूरे रिवर के वाटर को गंदा कर देता है। टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक जहरीले केमिकल्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं एंड दे बिकम हार्मफुल। गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूट को नॉर्मली हम कह सकते हैं गंदा, वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो उसे हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, नाउ लुक एक्टिविटी 18.5। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप पॉन्ड, फ्रॉम अ टैप नल, नल से पानी लीजिए, पॉन्ड तालाब का पानी, रिवर का पानी, वेल कुएं का पानी, लेक झील का पानी। पॉर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर्स, सबको थोड़ा थोड़ा वाटर आपको लेना है, कलेक्ट करना है और उनको अलग अलग ग्लास, शीशे के ग्लास में, सो वी कैन सी देम, हम उन्हें देख पाएंगे, ऐसे कंटेनर में उनको लेना है। कंपेयर दीज फॉर स्मेल, आप सबसे पहले उनको कंपेयर करेंगे, किस चीज़ में, उसकी स्मेल में कंपेयर करेंगे, क्या सभी की स्मेल सेम है, उसके कलर को देखेंगे, उसकी एसिडिटी चेक करेंगे, कौन सा पानी ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, एंड देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और आपको 18.2 टेप जो है ये टेबल बुक में ही कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। फर्स्ट वी रीड व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, व्हाट आर वाटर पॉल्यूटेंट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, आखिर वाटर पॉल्यूटेड होता कैसे है। केस स्टडी, हमें इसके लिए केस स्टडी करनी पड़ेगी। हमने एयर पॉल्यूशन में केस स्टडी किया था ताजमहल को। ओके, नाउ इन दिस टॉपिक वी स्टडी अबाउट गंगा। हम यहाँ पे गंगा के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ गंगा, गंगा क्या है, गंगा इज़ द हॉली रिवर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए वो एक पवित्र नदी, हॉली रिवर है। गंगा is one of the most famous rivers in India. It sustains most of the northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it for their daily needs. जो इंडिया का नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है वो इस पे डिपेंडेबल है पॉपुलेशन। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग डिपेंड है फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी रोज़मर्रा के नीड्स के लिए, किसके ऊपर, गंगा के ऊपर। एंड लिवलीहुड, और वो उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए जो WWF, यहाँ W वर्ल्ड वाइड रेसलिंग नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन नहीं है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड, found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। ये जो गंगा है वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट endangered rivers आती हैं उनमें वन प्लेस गंगा का भी है। द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बिन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से इसमें पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। और इसके पीछे क्या रीज़न है कि उसका पॉल्यूशन लेवल कई सालों से लगातार इंक्रीज हो रहा है। द मेन रीज़न इज़ दैट वी रीच दिस स्टेज, हम इस स्टेज पे क्यों पहुँचे, पॉल्यूशन के इस स्टेज पे क्यों पहुँचे, बिकॉज टाउन्स एंड सिटीज़, ऐसे टाउन और सिटीज़ थ्रू विच द रिवर फ्लोज, जहाँ से ये गंगा रिवर होती हुई बहती है, थ्रू लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, जितना भी वहाँ का गार्बेज है उसको डंप कर दिया जाता है किसके अंदर, रिवर के अंदर। अनट्रीटेड सीवेज, सीधा जो सीवेज गंदा पानी आता है घरों से निकलता है उसको बड़े सीवेज सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है और वो टोटल सीवेज रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है। डेड बॉडीज़, जानवरों की, इंसानों की, जो भी डेड बॉडीज़ है, अभी हमने लास्ट ईयर कोरोना में देखा कि जो डेड बॉडीज़ थी लोगों ने उनको जलाने की जगह गंगा में बहा दिया डायरेक्ट। वो ये भूल गए कि उसी गंगा का पानी हम पीते हैं, तो अगर जो वो वाटर पॉल्यूट होगा तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हम इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर पड़ेगा जो उनके ऊपर डिपेंडेबल है। बट दे फॉरगेट इट,
उनको तो फटाफट उन बॉडीज़ को डालना था, 1 मिनट भी नहीं लगाया सोचने में कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा। इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए था और वो इंस्टेंट सॉल्यूशन उनको मिला कि डेड बॉडीज़ को रिवर के अंदर डाल दिया जाए। ये बहुत गलत डिसीज़न था उन लोगों का। एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल्स, इनको डायरेक्टली थ्रू इनटू द रिवर, डायरेक्टली फेंक दिया जाता है रिवर के अंदर। In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive. In fact, the river is dead. Dead मान लिया गया उसको many places, कई जगहों पे where the pollution levels are so high. ऐसी जगह जहाँ पे pollution levels बहुत high है, बहुत ज़्यादा है, दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, कि वहाँ एक्वेटिक लाइफ तो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, वो वाटर इतना गंदा है। अब एक्वेटिक लाइफ क्या है? एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिश है, वाटर के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे आर इंक्लूडिंग इन एक्वेटिक लाइफ। और ड्यू टू द पॉल्यूशन लेवल दे कांट सर्वाइव, सो दीज प्लेसेस आर डेड प्लेसेस। ओके, ऐसी जगह जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही है, उन्हें हमने यहाँ डेड कहा है। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। एम्बिशियस प्लान तैयार किया गया किसके लिए? गंगा के लिए, और उसका नेम क्या गिवन किया गया? गंगा एक्शन प्लान। गंगा के ऊपर एक्शन लिया गया एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1985। ये आज से देख सकते हैं आप कितने साल पहले ये प्लान एक्शन में लाया गया था। इट मीन्स उस टाइम भी जो पॉल्यूशन लेवल था गंगा का वो इंक्रीज़ होता जा रहा था, और अब तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पॉल्यूटेंट्स इट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं जो लेवल है पॉल्यूटेंट्स का, तो गंगा का वाटर भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है। इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। तो गंगा एक्शन प्लान इतने ईयर्स पहले लिया गया था और उसका एम क्या था? उसका एम था रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। रिवर के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. रिवर को रिपेयर करने की जगह जो हमारी पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, और जो बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इसके लिए गलत साबित हो रहा है। रिवर को रिपेयर करने की जगह वो लगातार डैमेज करते जा रहा है। कौन से 2 पॉइंट्स? पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू initiative known as National Mission for the Clean India in 2016। तो 2016 में फिर से एक मिशन लाया गया। इनिशिएटिव नॉन एज, जो न्यू मिशन लाया गया उसका नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ गंगा, NMCG। कब? 2016 में। ओके, let us take a specific example to understand the situation। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इस सिचुएशन को समझ सकें। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। रिवर का सबसे जो मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है वो कहाँ आता है? कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। और यूपी के टाउन्स में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड टाउन्स के अंदर कौन सा टाउन आता है? कानपुर। यू कैन लुक दिस पिक्चर, कानपुर के उस जगह का जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स देख सकते हैं, कितना चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे, कचरा है, गार्बेज है, डेड बॉडीज़ पड़ी हैं। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से 1 ग्लास वाटर आपको लेना है और उसको ड्रिंक करना है, कैन यू डू इट? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नो, यू कांट डू इट। आप नहीं कर सकते हैं इसकी जगह की हालत। बट आपको पता है कि इसी रिवर का पानी
खूब सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, मिडल पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर पीने का पानी इसी गंगा से मिलता है और वो वाटर इस प्लेस से होकर भी निकलता है। तो पूरा का पूरा ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। ओके, पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफेक्टिंग इन द रिवर। देखा गया लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे बाथिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, क्लोथ्स को धो रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था। वो डिफेक्टिंग, फ्रेश हो रहे थे उस वाटर के अंदर। वहीं पे हम हमारा बॉडी का वेस्टेज छोड़ रहे हैं और फिर वहीं से हम हमारा ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं। तो सोच सकते हैं वहाँ कितनी सारी डिजीज़ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, वो प्रेजेंट होंगे, जर्म्स होंगे वहाँ के वाटर में। They also throw garbage, flowers, idols of gods and goddess and non-biodegradable polythene bags into the river. इसके साथ साथ बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिफेक्टिंग के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो गार्बेज, अपने घरों का कचरा वहाँ फेंकते हैं, फ्लावर्स, फूलों की मालाएं वगैरह फेंकते हैं, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। आपने भी हमारे यहाँ देखा होगा गणगौर पूजी जाती है, या जो गणेश चतुर्थी होती है उसके बाद, या माता जी की पूजा की जाती है, उस सब के बाद इन मूर्तियों की सवारी निकाली जाती है और लास्ट में क्या किया जाता है, हमारे सीकर में तो जो बड़ा तालाब, छोटा तालाब है, वहाँ पे इनको बहाया जाता है। और बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे मुंबई है, वहाँ पर गणेश चतुर्थी बहुत फेमस तरीके से मनाई जाती है और जो सी है उसके अंदर उन मूर्तियों को, आइडल्स को ले जाके छोड़ दिया जाता है। अब वो आइडल्स वो मिक्स नहीं हो पाते, वो एक पॉल्यूटेंट की तरह उस वाटर में हमेशा पड़े रहेंगे। ऐसे ही इनके साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स को भी वो रिवर में फेंक देते हैं। जब पॉलीथीन बैग वगैरह आपके ड्रेन्स में आती हैं तो वो ड्रेन को चॉक कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो ये पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर हमारे वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of the river is very slow. यहाँ पे पानी भी बहुत कम है और इसका फ्लो भी बहुत कम है, बहाव कम है। फ्लो मीन्स बहाव। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़। पानी इतना कम है और वहाँ पर 5000 इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट हैं। These include fertilizer, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़। और मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं वहाँ पर? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ है, पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। दिस इंडस्ट्रीज़ यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स, और इन इंडस्ट्रीज से टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट के रूप में निकलते हैं इनटू द रिवर, और उनको कहाँ डाल दिया जाता है? इनटू द रिवर, नदियों में बहा दिया जाता है उस वेस्ट को। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, चलिए अब आपके लिए देयर आर सम क्वेश्चन, यू थिंक एंड गिव द आंसर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। गंगा रिवर को पॉल्यूट करने के पीछे, उसके पॉल्यूशन के पीछे कौन से मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है? कैन यू गिव द आंसर? It means the first thing is human being, human activities, our population and industrialization. Second, what steps can be taken to restore the river Ganga to its past glory? गंगा अपनी पहले की ग्लोरी उसको वापस मिल जाए, इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए गए? तो हमने देखा 2 स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा गंगा एक्शन प्लान एंड सेकेंड वन इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। How would the disposal of garbage etc. affect the living organism in the river? जो डिस्पोजल है गार्बेज का, जो वो जाके रिवर के अंदर बैठ जाती है, चीज़ें सेडिमेंट हो जाती हैं, तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं? तो इनका आंसर आपको थिंक एंड आंसर। दे कांट लिव इन दिस टाइप ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, द एक्वेटिक एनिमल्स कांट लिव। ओके, many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams causing the pollution of water. Example are oil refineries, paper factories, textile and sugar mills. Now let's look this picture. Industrial waste discharged into the river and look the scene of this river. ये रिवर की जगह एक गंदा नाला ज़्यादा लग रही है। अब सीवेज सिस्टम की तरह ये दिख रहा है।
हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ अ क्लीन वाटर ऑफ गंगा, हम कह सकते हैं क्या कि ये गंगा का साफ़ सुथरा पानी है। सेम ऐसे ही दिल्ली में यमुना की हालत है। अगर आपको ना बताया जाए कि ये यमुना रिवर है और आपको पास में खड़ा कर दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि ये गंदा नाला है। ये कंडीशन अपने आप नहीं हुई है। इन रिवर्स की ऐसी कंडीशन करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है। Examples are oil refineries, paper factories, textile, sugar mills and chemical factories. They all are the responsible for the water pollution. These industries cause chemical contaminated of water. वो water में इन chemicals को mix up कर दिया जाता है. The chemicals released include arsenic, lead, fluorides which lead to toxicity in plants and animals. इन इंडस्ट्रीज के केमिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? आर्सेनिक प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ अ केमिकल, लीड जिसको हम सीसा कहते हैं, एंड फ्लोराइड्स, ये सारे के सारे टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं, जहरीलापन बढ़ा देते हैं किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस, कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए इनसे बचने के लिए। Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into waters. वाटर में डायरेक्ट इन केमिकल्स को थ्रो करने की जगह पहले उन्हें ट्रीट करना होगा कि उसको कम हार्मफुल बना जाए। बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, रूल्स बनाए गए हैं लेकिन अभी तक ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। द सॉइल इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर से सेफ लिविंग थिंग्स ही इफेक्ट नहीं हो रही हैं, हमारी जो सॉइल है वो भी अफेक्ट हो रही है। कॉजिंग चेंज इन एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी बढ़ रही है। ग्रोथ और वॉर्म्स, जो वॉर्म्स होते हैं सॉइल के अंदर उनकी ग्रोथ पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। We have learned in chapter 4 the importance of pesticides and weedicides for the production of crops. हमने पढ़ा चैप्टर फर्स्ट में कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को बचाने के लिए। However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the field. ऑल दीज केमिकल्स डिज़ोल्व इन वाटर। जब ये पेस्टिसाइड्स और विडिसाइड्स को हम सॉइल के ऊपर डालते हैं तो वो सॉइल को प्रोटेक्ट तो करती हैं लेकिन वो केमिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज़, और मिक्स होकर वाटर के साथ वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में चले जाते हैं। दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के अंदर भी सीप कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और जिससे ग्राउंड वाटर जो वेल है, ट्यूबवेल का वाटर है, उसको भी ये पॉल्यूट करते हैं। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोइंग इन दैम? क्या आपने कहीं ऐसे तालाब देखे हैं जो दूर से देखने पर ग्रीन कलर के नज़र आते हैं? ड्यू टू द एल्गी, क्योंकि उसके ऊपर काई एल्गी ग्रोथ कर रही होती है। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड। ये किसकी वजह से है? एक्सेसिव क्वांटिटी, केमिकल्स की एक्सेसिव क्वांटिटी की वजह से, जो कि वाटर के साथ बहकर फील्ड से आ चुकी है उन पॉन्ड्स के अंदर। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लरिश, और ये केमिकल्स न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करते हैं एल्गी के लिए। वंस दिस एल्गी डाई, अगर ये एल्गी एक बार मर जाती है, दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स उनको फूड की तरह खा लेते हैं, लाइक बैक्टीरिया। और ये डिकम्पोजर्स कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट्स यूज्ड अप, इसका मतलब वाटर बॉडीज़ में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था ज़्यादातर वो ऑक्सीजन यूज़ कर लिया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मे किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से वाटर के अंदर की जो प्रेजेंट ऑक्सीजन थी वो यूज़ ले ली जाती है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन नहीं बचती, और जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी दे विल डाई, वो मर जाएंगे। ओके, इतना चैप्टर आज हमारा हुआ। आप क्या करेंगे? यू ओपन योर बुक्स एंड योर डू रीडिंग फ्रॉम योर बुक अगेन, एंड इम्पॉर्टेंट यू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक मी। आप मेरी तरह जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ आप इसी तरह से इसको अंडरलाइन करेंगे। एंड यू ऑल्सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन विच आर गिवन इनसाइड योर बुक एंड बैक साइड ऑफ योर चैप्टर ऑल्सो। आपके बुक के इनसाइड और बैक साइड में जो चैप्टर दिए गए हैं उनको आप करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो टुडे गुड बाय।